हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के अय्याम अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने मैट्रिक्स चैप्टर का अहम तरीन हिस्सा पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 टॉपिक्स है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, सिंगुलरिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ये लेक्चर गौर से सुनिए। मैथमेटिक्स का लेक्चर लेते वक्त आपके पास पेन और कागज़ हाथ में होना चाहिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो आप उसको नोट कर सकें। Students, be ready. We are going to solve some question and define these 4 important topics today. Let's take start. Determinant of any matrix. We have a question. A square matrix A 5 6 minus 4 and 1। हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जस्ट यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का। नोट एट के डिटर्मिनेंट सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स इज वेरी सिंपल। जस्ट लुक एट हियर। स्ट्रेट लाइंस में इसको बंद करते हैं, इसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। इफ यू आर आस्क्ड जस्ट टू सॉल्व this one, so what does it mean? It means determinant, to find the determinant of matrix A. So writing in straight lines 5 6 minus 4 1. Now look at here. Determinant very simple. How? Just multiply this 5 with 1. Can you multiply? Yes, this multiplication is 5 ones are 5. नाउ दरमियान में माइनस लगाएंगे। बाद में जो भी साइन आए लेकिन दरमियान में हम माइनस लगाएंगे। अब 6 और -4 को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है? -24। नाउ हियर द माइनस साइन इज ट्वाइस, सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस एंड 5 plus 24, so the result is 29. So the determinant of matrix A is equal to what? 29. Take another example. Let's we have a matrix B which containing elements 4 -2 5 and 13. Students need your attention. Look at here. Determinant is very simple. How? Writing it is in a straight line. Can you write it? It's very simple. Just 5 13. Now simply multiply this 4 with 13 and -2 with 5. 4 13 by 4 52। बीच में क्या लगाएंगे? माइनस साइन, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये -2 है और 5 -10। नाउ हियर इट इज डबल साइन, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, सो इट इज प्लस 10। नाउ द आंसर इज 62। कैन यू फाइंड द डिटरमिनेंट? जस्ट वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट without solving. You can also find that the determinant of any matrix is equal to what? 11 7
minus 6 and 5. Can you find the determinant? Just multiply this with this and subtract 8 from 8, the multiplication of 6 and 7. So what will be the answer? 55 minus 42 minus 42. Just adding this term, you will get the answer. So the determinant of 2 by 2 matrix is very simple. Can you do it? Okay. Solve the remaining some questions of determinant by 2 by 2 matrix. Next. Now let's consider 3 by 3 matrix, and we are asked to find the determinant of this matrix. It is also very simple. Finding the determinant of matrix, writing in straight lines, just expanding by first row. This one is our first row. What we are going to do to find the determinant? By expanding the matrix in first row. Look at what is there in the first row, 1, and writing the minor. Next, the second term should be minus, that is minus 2, and writing the minor. Next term again should be plus, so it is plus 2, and writing the minors. So what are the minor? Look at here. It is very simple. If we are taking this one, so ignoring this row and this column, so what we have? 2, 3, minus 3 and 4. If we taking this one, we should ignore this row and this column. अगर हम इसी एलिमेंट्स को लेते हैं तो ये एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको स्किप करें, उसको इग्नोर करें, तो क्या बनेगा? यही पोर्शन रहेगा। अगेन हम इसी एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस लिखेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किस रो और कॉलम में है? ये 2 इसी रो में है और इसी कॉलम में है। ये रो ये कॉलम स्किप करें, इग्नोर करें, तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 minus 2 and 3 and 4। इसी को कहते हैं माइनर। इसको क्या कहते हैं? माइनर। नेक्स्ट, अगर हम इसी 2 को कंसीडर करें तो इसी कॉलम को और इसी रो को स्किप करें तो क्या बचेगा? 3, 2, minus 2, minus 3। Now finding the determinant, we can solve the 2 by 2 matrix determinant which we solved earlier. यहाँ पर 1 है इसका determinant, 2 4s are 8 minus 3 3s are 9। यहाँ पर ये minus 2 है, 3 4s are 12 minus minus 6 plus 2, 3 3s are 9 minus minus 4। Now 1 8 plus 9 है, minus minus plus, minus 2 12 plus 6 plus 2 minus 9 plus 4। Now adding, this one is 70, this one is 80, this one is minus 5, 17 minus 17 ones are 17, 18 twos are 36, and this one is minus 10. Now 70 minus 46. Subtracting these terms, minus 9 or 29. This one is the determinant of G. Determinant of G is equal to minus 29. We expanded this matrix by first row. If you want to solve or expand it by first column, you can also solve it and the result will be same, and the result will be
29 -29। अगर आप इसको पहले कॉलम पर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए हम लेंगे 1 को 1 और उस 1 का माइनर लेंगे फिर 1 एंड टेकिंग द माइनर ऑफ 1 अगेन, फिर लेंगे -3 का माइनर ले लें, फिर लेंगे -2 और -2 का माइनर ले लें। पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ये माइनस खुद ही -2 है, तो 1 का माइनर क्या है, ये टर्म माइनर है। फिर ले ले ये 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको स्किप करें तो क्या बनेगा, ये 2 और -3 4 और इसी तरह इसी -2 के माइनर ले लें तो रिजल्ट विल बी सेम। चेक है, you can solve the determinant of 3 by 3 matrix by a lot of methods. Means you can expand by first row, by second row, by third row, by first column, by second column and by third column. But it is simple, just to select the first row you will face no problem. Okay, next. Students, look at another question. Find the determinant of this matrix. Look at this matrix. ये जो कॉलम है, ये जो मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो नोट करें, प्लीज नोट दिस, determinant of diagonal matrix will be the product of the diagonal elements. So what will be the determinant of this matrix? That will be determinant of H will be equal to ABC. अगर आप इसको नहीं मानते तो चलो सॉल्व करते हैं। Determinant of H is equal to what? Expanding by first row A and the minor of A. Second element should be negative. That is 0 and their minor, and the third one is 0 and their minor. A ये एलिमेंट और ये स्किप हो जाएगा, क्या बचेगा, B0 0C, ये पोर्शन बचेगा। ओके, नाउ 0 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनर में जो कुछ भी हो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 आएगा। यहाँ पर भी जो कुछ भी आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये A है और यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करें, A मल्टीप्लाइड विद B मल्टीप्लाइड विद C, BC एंड 0 मल्टीप्लाइड 0 -0, यहाँ पर ये ABC बनेगा। ये आंसर है। यहाँ पर ये MCQs में आ सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ अगर आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया हो, दैट इज 1 0 0 1, this is also an example of diagonal matrix. So the multiplication of the diagonal elements is equal to what, 1. So the determinant of diagonal matrix will be equal to 1. अगर ये diagonal matrix of order 3 हो, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, किसी भी ऑर्डर का हो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 होगा। Determinant of the identity matrix will be equal to what, 1. Now अब हम डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटी को। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट के बारे में आप लोगों ने सीख लिया। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसमें एलिमेंट्स है 5 3 2 1। तो क्या आप इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं? यस, just the multiplication of cross elements, 5 1s are 5 minus 2 3s are 6, that is equal to -1। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, सुनिए और से सुनिए, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो
तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? -1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए सिंगुलर है? नो, ए नॉन सिंगुलर हो गया। चेक करें दूसरे मैट्रिक्स को। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसमें एलिमेंट्स है 3 - 6 -2 4। Now find the determinant. The determinant of this matrix will be equal to 3 4s are 12 minus the multiplication of this is equal to plus 12. So 12 minus 12 is equal to what? 0. Now we can say that B is singular because the determinant of B is equal to what? 0. तो B क्या हो गया? सिंगुलर। सिंपल है कि नहीं? दोबारा सुनिए, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो तो मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर होगा। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यू कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर मैट्रिक्स इफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर। Now adjoint is also। मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A which has elements 1 2 3 4। Find the adjoint. Adjoint can be written as ADJ of matrix A, or writing with the smaller letter adjoint. Just changing these two terms, the main diagonal term 4 1, and changing the sign of the co-diagonal, that is -2 and -3. This is adjoint. Try another one. We have matrix C is equal to 2 - 4 3 1. Adjoint of C is equal to what? Changing the co-diagonal elements 1 2, दो एक के साथ चेंज हो जाएगा और इसी दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे। ये -4 है तो ये +4 बन जाएगा, और ये जो +3 है ये -3 हो जाएगा। So it is the adjoint. Adjoint is very simple. Simply इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में चेंज करें और इन दोनों का साइन चेंज करें तो ये एडजॉइंट हो गया। नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इट इज द लास्ट टॉपिक इन दिस एक्सरसाइज and it is much more important. Inverse denoted by this symbol. Students, क्या आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं? Just writing in straight line 4 1 3 1. What is the determinant of this matrix? Just multiply this term. 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 is equal to 1. क्या आप इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं? अगर यस तो क्या होगा एडजॉइंट? एडजॉइंट के बारे में हमने पढ़ा कि इसी दोनों एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करें। ये 4 1 के साथ इंटरचेंज हो जाए और ये 3 1 के साथ। यहाँ पर मतलब 3 1 का क्या होगा? साइन चेंज होगा, ये -1 हो जाएगा और ये -3। तो ये सिंपल डिटरमिनेंट और एडजॉइंट अभी हमने सीखा। तो इनवर्स में थोड़ा सा इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, इसको फिर हम क्या कहेंगे? इनवर्स। किस तरह मिलाते हैं इसको देखिए।
ए इनवर्स क्या होता है? ये जो आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया है इसको 1 ओवर डिटरमिनेंट आप ए लिख के और एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 ओवर डिटरमिनेंट एंड टू एडजॉइन ऑफ ए। सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट? 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, that is 1 over 1 multiply with adjoint of a. What is adjoint of a? This one is adjoint of a. 1 by 1 means 1, so it means 1 minus 1 minus 3 4 is the inverse of the given matrix. Simple है क्या नहीं? It is very simple. Just taking another example, if we have a matrix B, element 3 4 1 2, first finding the determinant. Determinant is simple, 3 4 1 2, 2 3s are 6 minus 4 1s are 4. The determinant is equal to 2, and adjoint of B is equal to what? Just changing these two, interchanging. This is 2 3 minus 4 minus 1. Now A B inverse is equal to just 1 over determinant of B and to adjoint of B. So what is 1 over what is the determinant? Is 2. So 1 by 2 and adjoint of B is equal to 2 minus 4 minus 1 3. If you want you can multiply this term with every term, or आप मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते तो इसको इसी तरह भी जोड़ सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको क्या करें? मल्टीप्लाई करें हर एक टर्म के साथ। तो ये क्या बनेगा? 2 by 2 minus 4 by 2 minus 1 over 2 and 3 by 2। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर ले। ये 1, ये -2, ये -1 और ये 3 by 2। ये B inverse। So finding the inverse of any matrix is also very simple. Note one thing, students. If the determinant of any matrix equal to 0, then can you find the inverse of that matrix? No, because यहाँ पर जो फार्मूले में है 1 over डिटरमिनेंट, तो अगर यहाँ पर ये डिटरमिनेंट 0 है तो क्या आप 0 पर डिवीजन कर सकते हैं? कैलकुलेटर को निकालिए, शाबाश, चेक करें कि क्या आप 1 over 0 कर सकते हैं? 1 divided by 0 चेक कर लें। नहीं, हम 0 पर डिवीजन नहीं कर सकते। अगर डिटरमिनेंट आप किसी भी मैट्रिक्स का 0 हो तो उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। सिंपली आप लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो आपने आगे नहीं जाना है, जस्ट लिखना है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। This all about the determinant, the adjoint and the inverse of any matrix. This lecture was important in every point of view because we have used a lot of ideas in this exercise. If you like our video lecture then please subscribe our channel ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।